یہ کہانی ہے 3 کرداروں کی۔ ایک بادشاہ جو خود کو سورج سمجھتا تھا، ایک وزیر جو سائے کی طرح وفادار تھا، اور ایک عورت جو خاموشی سے سلطنت کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی تھی۔ بادشاہ سورج پرتاپ نامی ایک نسلی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور سمجھتا تھا کہ اس کی زبان ہی قانون ہے۔ دربار میں اس کی آنکھیں بجلی بن کر گرتے اور درباری کانپتے رہتے کہ کب کسے خاک کر دے۔ مگر ایک ہی شخص تھا جس پر یہ بجلی کبھی نہیں گری، وزیر دھیرسل، وفادار، باہمت اور عقل و تدبر کا پیکر۔ اس کے گرد نہ ہیرے اہم تھے، نہ گھوڑے، نہ فوج۔ اس کی اصل دولت اس کی بیوی تھی، بدھمتی، ایک نہایت خوبصورت مگر اس سے کہیں زیادہ ذہین عورت۔ محل کی اونچی تسیلوں سے سورج کی روشنی سنہری جھلک میں چمک رہی تھی۔ اندر بادشاہ سورج پرتاپ سنہری تخت پر دراز تھا، جس پر سرخ مخمل اور سنہری زری کی کڑھائی تھی۔ وہ اپنے آس پاس جھکے درباریوں کو حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ میں ہوں اس سلطنت کا سورج، جس پر میری روشنی نہ پڑے وہ اندھیرے میں ہی رہے گا۔ درباری خوف سے سر جھکائے ہوئے تھے، کسی کی ہمت نہ تھی آنکھ اٹھانے کی۔ محل سے تھوڑے فاصلے پر ایک سادہ مگر کشادہ حویلی تھی۔ وزیر تیرسل سفید لباس اور سبز دوپٹہ کندھے پر ڈالے بدھمتی کے ساتھ باغ کے جھولے پر بیٹھا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں ذمہ داری کا بوجھ جھلک رہا تھا۔ یہ سب کچھ، یہ مقام، یہ عزت تمہارے دم سے ہے بدھمتی۔ ایک طرف غرور میں ڈوبا بادشاہ، دوسری طرف وفادار وزیر، اور بیچ میں چپ چاپ بیٹھی بدھمتی، جو ہر فصیل کے پیچھے چھپی حقیقتوں کو دیکھ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی وقت آنے والا ہے۔ بادشاہ خود کو سورج سمجھتا ہے، مگر میں دیکھ رہی ہوں وہ اندھیرا جو آہستہ آہستہ چھا رہا ہے۔ دربار میں بادشاہ نے سب کے سامنے وزیر کو سراہا۔ دھیرسل، تم میرے سب سے قریب ہو۔ درباریوں کی آنکھوں میں جلن چھپی نہ رہی۔ ایک ایک کر کے سب کے دلوں میں زہر اتر رہا تھا۔ رات کے وقت جب محل سو رہا تھا، بدھمتی چاندنی میں اپنے کمرے کے زینے پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں خاموشی سے شوہر کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے دھیرسل، تم جس بادشاہ پر بھروسہ کر رہے ہو وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ صبح ہوتے ہی دھیرسل دربار کی طرف بڑھا، مگر بدھمتی کے دل میں ایک اندیکھا بوجھ تھا۔ ہوا کچھ اور کہہ رہی تھی، یاد رکھو، سورج جب غرور میں آتا ہے تو اندھیرا زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ دربار میں ہر طرف بظاہر خاموشی تھی، مگر آنکھوں میں جلتی حسد کی چنگاریاں چھپی نہ رہ سکے۔ ایک درباری دوسرے سے سرگوشی میں بولا، جب سے وزیر کو بادشاہ کا خاص مقام ملا ہے، ہم سب بس مجسمے بن کر رہ گئے ہیں۔ دوسرا بولا، اب وقت آ گیا ہے، بادشاہ کو اس پر شک دلانا ہوگا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی سمت بدلی ہوئی تھی۔ دھیرسل کو دیکھتے ہوئے وہ اب پہلے جیسا مطمئن نہ تھا۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں سوال ابھرے اور پھر فوراً غائب ہو گئے۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی سمت بدلی ہوئی تھی۔ دھیرسل کو دیکھتے ہوئے وہ اب پہلے جیسا مطمئن نہ تھا۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں سوال ابھرے اور پھر فوراً غائب ہو گئے۔ کیا یہ وہی وزیر ہے یا میرے سامنے کوئی اور چہرہ چھپا ہے؟ دھیرسل اپنے حجرے میں بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، مگر دل میں خلش۔ میں جانتا ہوں بادشاہ بدل رہا ہے، اس کی آنکھیں اب مجھ پر نہیں، میرے نیچے دیکھ رہی ہیں۔ بدھمتی خاموشی سے آنگن میں قدم رکھتی ہے، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی ہے۔
धीरसल उसकी तरफ देखता है जैसे उसके दिल की बात उसके चेहरे पर लिखी हो। तुम नहीं जानते, साजिश की बू अब दीवारों से भी आने लगी है। मैं देख रही हूं, तुम्हें निशाना बनाया जाएगा। इसी रात धीरसल को एक ख्वाब आता है। महल की दीवारें सियाह हो गई हैं और एक साए ने उसकी गर्दन पकड़ रखी है। वो हड़बड़ाकर उठता है, पसीने में शराबूर। वो बस एक ही जुमला दोहराता है, आंधी आ रही है। दरबार में वजीर जैसे ही दाखिल होता है, चंद दरबारी खामोशी से खिसर फिसर करते हैं। एक तंजिया कहकाह दबाया जाता है। वजीर के कदम रुक नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी आ जाती है। जब दरबारी हंसें, जान लो उनके तीर तैयार हैं। बादशाह अपने तख्त से उठा और गुस्से में वजीर के करीब आया। तुम्हें मेरे दुश्मन को माफ करने का फरमान देना होगा। वजीर ने खामोशी से आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं माफी दूंगा, मगर उस पर जो बेगुनाह हो, जालिम पर नहीं। बादशाह का चेहरा तमतमा गया। मेरे सामने नहीं? धीरसल ने अपना चुगा दुरुस्त किया और मजबूत लहजे में कहा, जी हां, आपके सामने। दरबारियों ने तलवारों के दस्ते थाम लिए, लेकिन धीरसल ने भी अपनी तलवार खींची। वो जानता था अगर हमला हुआ तो वो खामोशी से मरने वाला नहीं। लेकिन हमला ना हुआ, सिर्फ सन्नाटा फैल गया। बादशाह ने चीख कर हुक्म दिया, इसे मीनार की छत पर कैद कर दो। न पानी, न रोटी, न साया। महल में लर्जा तारी हो गया। किसी ने वजीर को हाथ लगाने की हिम्मत ना की। धीरसल ने खुद ही हाथ आगे कर दिए। मैं खुद चलूंगा, क्योंकि मेरा सर झुकता नहीं, सिर्फ अपने रब के आगे झुकता है। मीनार की छत पर धीरसल ने जालियों के साथ कमर टिकाई और आसमान की तरफ देखा। ये सजा नहीं, ये एक रास्ता है जहां से शायद कोई निजात निकलेगी। बुधमती, तुम जरूर आओगी। रात के अंधेरे में बुधमती खिड़की के पास बैठी थी। बाहर हवाएं चल रही थीं, अंदर दिल रो रहा था। अब तक तो वो वापस आ जाना चाहिए था, आखिर कहां रुक गया? चेहरे पर दुख, लेकिन अंदर उम्मीद की टिमटिमाती रोशनी बाकी थी। सुबह होने से पहले बुधमती महल के दरवाजे से बाहर निकली। सड़कों पर सफाई करने वाले मजदूर आपस में सरगोशी कर रहे थे। सुना है वजीर को कैद कर दिया गया है। बुधमती करीब से गुजरी। उनके जुमले तलवार बनकर दिल में गुजर गए। एक बूढ़ा मजदूर फुटपाथ पर बैठा कह रहा था, वजीर बड़ा नेक था, पर गुरूर के आगे कब किसी की चली। बुधमती चंद कदम पीछे रुक गई। आवाज साफ सुन रही थी, दिल धड़क रहा था। बुद्धमी पलट कर घर न गई। वो फुटपाथ पर बैठ गई, चुपचाप। रात बीत गई, सुबह हो गई और फिर शाम। किसी ने पूछा, बीबी यहां क्या कर रही हो? जवाब में बस आंखों से आंसू निकले। जबान बंद थी, मगर दिल बोल रहा था। घर वापस आकर उसने खामोशी से चादर ओढ़ी, तकिया के नीचे रखे कागज को निकाला और कहा, अब सिर्फ मैं ही उसे बचा सकती हूं। उसकी आंखों में खौफ न रहा, अब फकत अज़्म था। रात के आखिरी पहर उसने वुजू किया, जाए नमाज बिछाई और सजदे में जाकर कहा, ऐ मालिक, आज मेरी दुआएं मेरे शौहर तक पहुंचा और मुझे उसकी हिफाजत के काबिल बना दे। आधी रात गुजर चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा, महल खामोश, गलियां सोनी। बुधमती ने चादर लपेटी, सामान बांधा और चुपके से महल से निकली। बस आज की रात है, अगर कल सूरज निकल आया तो देर हो जाएगी। वो मीनार के पास पहुंची। धीरसल जाली से झांक रहा था। मैं आ गई हूं, सारी चीजें साथ लाई हूं। धीरसल ने सुकून का सांस लिया, जैसे रोशनी वापस लौट आई हो। धीरसल ने कहा, भोरे की कमर पर रेशमी धागा बांधो और उसकी नाक पर शहद टपकाओ, वो खुशबू के पीछे ऊपर चढ़ेगा। बुद्धमती ने एहतियात से भोरा निकाला, धागा बांधा
और शहद की बूंद टपकाई। भूरा खुशबू के पीछे उड़ता हुआ मीनार की दीवार पर चढ़ने लगा। बुद्धंती ने नरमी से धागा ढील दिया, जैसे इस धागे के साथ उसका शौहर बंधा हो। भूरा ऊपर पहुंचा, धीरसेल ने धागा पकड़ा और नीचे से डोरी बांधी गई, फिर रस्सा। हर नया कदम मौत से थोड़ा फासला मजीद बढ़ा रहा था। बस एक पग बाकी है। धीरसेल ने रस्सा मीनार के जंगले से बांधा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे सरकुनने लगा। बुद्धंती के हाथ खून आलूद थे, मगर उसकी आंखों में रोशनी थी। जब वो जमीन पर आया, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और खामोशी से चल पड़े। धीरसेल और बुद्धिमती मट्टी की सुनसान गलियों में चल रहे थे। सिर्फ उनके कदमों की चाप थी। किसी ने कुछ न कहा, लेकिन उनकी आंखें एक दूसरे से कह रही थीं, हम बच गए, मगर हम अब वही नहीं रहे। धीरसेल के हाथ रस्सी से छिल चुके थे। बुद्धिमती ने अपनी चादर का कूना फाड़ कर पट्टी बनाई, खामोशी से झुके सर, मोहब्बत भरी उंगलियां। ये जख्म तुम्हारी कुर्बानी की मेहर है। घर पहुंचने से पहले बुद्धिमती ने धीरसेल की पगड़ी खोली और वो भूरा आहिस्ता से निकाला जो उस निजात का पहला सफीर था। ये अब आजाद है, जैसे हम हैं। उनका घर दूर से नजर आया। दरवाजा अभी बंद था। सूरज उस पर पूरी आबोताब से पड़ रहा था। बुद्धिमती की आंखें नम हो गईं। कितना खुश नसीब दर है जो हमें दोबारा देख रहा है। घर के अंदर सब कुछ वैसा ही था, बर्तन, फर्श, दीवारें, मगर फजा में सुकून की एक नई खुशबू थी। धीरसेल ने एक गहरा सांस लिया, जैसे जिंदा होने की गवाही दे रहा हो। बुद्धिमती ने पानी से लबरेज कटोरा वजीर के हाथ में दी। ये सिर्फ पानी नहीं, ये जिंदगी है, दोबारा जीने की इजाजत। बुद्धिमती ने पानी से लबरेज कटोरा वजीर के हाथ में दिया। ये सिर्फ पानी नहीं, ये जिंदगी है, दोबारा जीने की इजाजत। धीरसेल ने प्याला लबों से लगाया और आंखें बंद करके कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। 3 दिन गुजर चुके थे। बादशाह ने किसी को न बुलाया, न खुद दरबार गया। खिड़की के सामने खड़ा खामोशी से उस मीनार को देखता रहा। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही साए पर वार कर दिया। बादशाह की आंखों में गुस्से के बजाय अब नमी थी। वो अपनी ही सोचों में गर्क माजी के लम्हे दोहरा रहा था। धीरसेल का इनकार, तलवारें, कैद, सब। दरवाजे पर दस्तक हुई। बादशाह ने झुंझलाकर कहा, क्या कहा था? कोई अंदर ना आए। मगर फिर आवाज आई, मगर ये वजीर है। कान तो सलामत रहने दें, बादशाह सलामत। बादशाह दौड़कर बाहर आया, धीरसेल को देखा और लपक कर उसे गले लगा लिया। आंखों में खुशी भी थी, शर्मिंदगी भी। तुम वापस कैसे आए? धीरसेल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी बीवी ने और एक भोरे ने, शहद की एक बूंद काफी थी। बादशाह हंस पड़ा, एक थकी हुई मगर हकीकी हंसी। बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, आकल, वफादारी और सच, इनसे बड़ा कोई हथियार नहीं। और बुद्धमती को इज्जत खास दी गई, क्योंकि वही तो थी जिसने चिराग जलाया था अंधेरे में।